Good morning, everyone. How are you? Hope you all are joining at your home. And today we will start a new chapter of our supplementary NCERT book, that is Alien Hands. So, from this book, today we started a new chapter, chapter number 8, The Bear Story. Chapter number 8, The Bear Story. So, we go through it, just read it. The lady in the manor house had a pet bear as a pet. It was the most friendly bear who loved vegetables, apples and honey. He roamed means wandering, घूमना इधर उधर freely during the day, but was put on the chain at night. So now we will start our chapter. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear. She was very fond of it. So this story is about the old lady and her pet, that is a bear. So a old lady lived in an old manor house in the border of a big forest. एक बहुत बड़े जंगल के border पर एक old lady अपने घर में रहती थी. And this lady had a pet bear. उसके पास कौन था? एक पालतू bear था. She was very fond of it. जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. Fond means पसंद करना. It had been found in the forest, half dead of the hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. और वो बेयर कहाँ मिला था उस लेडी को? जंगल में छोटा सा बच्चा मिला था बेयर का, जो कि भूखा था, हेल्पलेस था, बहुत छोटा था, और वो उसको अपने साथ में अपने घर पे ले आई थी. और उसने और उस लेडी की कुक ने उस बेयर को बॉटल से दूध पिलाकर उसको बड़ा किया था. सो बोथ ऑफ देम आर वेरी अटैच्ड विद दैट बेयर. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he would have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. ये बात तब की थी जब उसको लेके आए थे, कुछ साल पहले की थी. अब तो वो छोटा सा बेबी बेयर एक बहुत बड़े बेयर में चेंज हो चुका था. इतना बड़ा बेयर हो चुका था कि उसके दोनों पॉज के नीचे से काव निकल कर जा सकती थी. इतना बड़ा वो बेयर हो चुका था अगर वो चाहे तो. But he did not want to. लेकिन उसको ये पसंद नहीं था. He was the most amiable bear. Amiable मतलब बहुत सीधा, simple. बहुत ही amiable bear था. Who did not dream of harming anybody. जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था. Man or beast, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो. Beast means animal. He used to sit outside his kennel. Kennel is the house of bear. So he used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो अपने जो kennel था उसके बाहर आकर बैठ जाता था और सामने मैदान में जो cattle घास चरते रहते थे उनको बैठकर चुपचाप देखा करता था. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well. Ponies, horses. Ponies means horses. और सामने के जो मैदान था शैगी माउंटेन, वहाँ पर माउंटेन पॉनीज, पहाड़ी जो घोड़े थे वो उसको जानते थे. एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टैबल विद हिज मिस्ट्रेस. और उनको जरा भी परेशानी नहीं होती थी जब वो बेयर उसकी मिस्ट्रेस के साथ, मिस्ट्रेस मालकिन के साथ उसके स्टैबल में घूमने आया करता था. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. The children used to ride. जो बच्चे थे वो उसकी बैक पर बैठकर राइड करना पसंद करते थे. The three dogs loved to play all sorts of games with him. और जो 3 dogs थे जो वहाँ पर रहते थे उनको उसके साथ में खेलना बहुत पसंद था. Pull his ears, कोई उसका कान खींचता था, and stump off his tail and tease him in every way. हर तरह से उसको चिढ़ाने की कोशिश करते थे वो तीनों डॉग. But he did not mind it in the least. लेकिन जो बेयर था बहुत एमिएबल था, बहुत सीधा था, बहुत सिंपल था, बहुत काइंड था. वो ज़रा भी परेशान नहीं होता था और उसके साथ में उनकी कंपनी को वो एंजॉय करता था. He had never tasted meat. कभी भी उसने मीट नहीं खाया था. He ate the same food as the dog and often out of the same plate.
ब्रेड एंड पोटैटोज, कैबेज, टर्निप, और उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, वो वही खाना खाता था जो कि डॉग्स खाते थे। और कभी कभी तो सेम प्लेट में वो लोग खाना खाते थे। ब्रेड, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सारे उसके वेजिटेरियन फूड्स थे। वो मीट कभी भी उसने टेस्ट नहीं किया था। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स हंगर, उसकी बहुत अच्छी भूख थी, बहुत अच्छे से वो खाना खाता था और उसको एंजॉय करता था। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और जब वो खाना खाता था तो उसकी जो दोस्त थी, और दोस्त कौन थी? कुक, जो ओल्ड मिस्ट्रेस की कुक थी जिसने उसको पाला था, वो उसकी भी फ्रेंड थी। तो वो पूरा अच्छे से ध्यान रखती थी कि बेयर का पेट भरा या नहीं भरा। Bears are vegetarians. If they have a chance, and fruit is what they like best. Vegetarians होते हैं और सबसे ज़्यादा उनको क्या पसंद होते हैं? Fruit. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. And in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. So in the autumn season में वो बैठ जाया करता था और अपनी wistful eyes से, लालची मतलब उसका बहुत मन होता था, जो सामने ऑर्किड था, जो बगीचा था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स उगते थे, उन फ्रूट्स को खाने का उसका ललचाई भरी निगाहों से उनको देखता था। और जब वो छोटा था तो कभी कभी उसने कोशिश की थी उस गार्डन में जाने की, ऑर्किड में जाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर और फ्रूट्स खाने की। Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. जब हम बेयर को देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आलसी एनिमल होता है, शैगी, धीरे धीरे चलने वाला एनिमल होता है। लेकिन जब भी किसी भी एप्पल ट्री पे आप अगर किसी बेयर को चढ़ते हुए देखोगे तो आपकी ये जो बात है कि बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, बहुत शैगी होते हैं, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत फुर्तीले भी होते हैं। Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था, वो समझ चुका था कि किसी और के गार्डन में जाकर पेड़ पे चढ़कर एप्पल्स को चुराना बिना परमिशन के खाना गलत बात है। लेकिन फिर भी जब कोई एप्पल अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता था तो कभी कभी वो उसको खा लेता था। There had also been some difficulties about the beehives को लेकर भी उसको थोड़ी परेशानियाँ थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. और इस वजह से उसको 2 बार पनिशमेंट मिल चुका था ट्रेन में बंद कर रहने का, जिसकी वजह से उसकी नाक में से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब उसने वो सारी चीज़ें करना छोड़ दिया। Otherwise he was never put on the chain except for the night, and quite rightly too. Otherwise उसको कभी भी चेन में बांधकर मिस्ट्रेस नहीं रखती थी, लेकिन एज अ पनिशमेंट उसको 2 दिन तक चेन में बांधकर मिस्ट्रेस ने रखा था। अदरवाइज वो हमेशा खुला रहता था, लेकिन रात के वक्त उसको चेन में बांध दिया जाता था। He was also put on the chain on Sunday, और एक संडेज को भी उसको चेन में बांध के रखा जाता था। When his mistress went to spend the afternoon with his married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. संडे को भी उसको चेन से बांध कर रखा जाता था, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जंगल को पार करके दूसरी तरफ माउंटेन हिल्स में मिलने जाया करती थी। तब उसको चेन से बांध कर वो जाया करती थी, डेंस फॉरेस्ट से निकल के वो जाया करती थी। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all his temptations. It was better to be on the safe side. और मिस्ट्रेस क्यों नहीं ले जाती थी बेयर को अपने साथ में? क्योंकि उसके लिए ये ज़्यादा सेफ था कि वो घर पे रहे। फिर जब वो जंगल में से जाता तो अलग अलग फ्रूट्स उसको नजर आते, उसकी टेम्पटेशन को खाने की टेम्पटेशन बढ़ जाती और ये उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था, इसलिए ये ज़्यादा सेफ था कि वो घर में रहे। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. और उसको तैरना भी ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था। एक बार उसके साथ इंसिडेंट हो गया था जिसके कारण वो और उसके मिस्ट्रेस को बोट उलट गई थी और उनको बड़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था।
Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the train on Sunday, with a friendly tap on his head and promised of an apple on her return if he had been good during her absence. लेकिन अब वो समझ जाया करता था, जब हर संडे को उसको ट्रेन में बांधा जाता था तो उसको समझ में आ जाता था कि मिस्ट्रेस जाने वाली है अपने सिस्टर से मिलने के लिए, और उसको धीरे से ट्रेन में प्यार से बांध कर उसके सर पे थपथपाकर उसको प्रॉमिस करके मिस्ट्रेस जाया करती थी कि जब वो आएगी तो उसको एक एप्पल जरूर मिलेगा खाने के लिए, अगर वो दिन भर अच्छा बन के रहा। He was sorry but resigned like a good dog. उसको बुरा लगता था पर वो एक अच्छे डॉग की तरह बात को मान लेता था। When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, जब उसकी मिस्ट्रेस बताती थी कि वो उसके साथ में नहीं जा सकता है। One Sunday when the lady had changed him as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. जब एक संडे को लेडी जंगल में से पार करके जा रही थी तो उनको लगा अचानक से क्रैकिंग, जो सूखी हुई पत्तियां थी उनकी क्रैक करने की उनके कानों में आवाज आई। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गई क्योंकि एक बेयर बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a floating horse. In a minute he had joined her and panting and sniffing, और एक ही मिनट में वो मेरे पास में पहुंच गया, मिस्ट्रेस के पास में पहुंच गया और पैंटिंग जैसे कि डॉग पेंट करते हैं अपनी जीभ को बाहर निकालकर और उनका जो सलाइवा है वो बाहर नीचे गिरता रहता है, उसी तरह से वो भी उसके सामने आकर पेंटिंग करने लगा, स्निफिंग करने लगा। टू टेक हिम इन यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर फीट, उसके पैरों में आकर वो ये सारी हरकत करने लगा। The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides, it was very naughty of him have disobeyed her. लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वो ऑलरेडी लंच के लिए लेट हो चुकी थी और उसके पास टाइम नहीं था वो बेयर को वापस जाकर घर पे छोड़ के आए, और उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि बेयर ने उसको डिस्को भी किया। She told him in her savage voice to go back at once, mentioning him with her parasol. Parasol means umbrella. उसने अपनी अम्ब्रेला से उसके सामने उसको धमकाते उसको वापस घर जाने के लिए बोला। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. बेयर ने उसकी तरफ देखा अपनी आंखों से गुजरते हुए, लेकिन वो वापस नहीं गया। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. जब उसको बहुत तेज गुस्सा आया लेडी को तो उसने अपने पैरासोल से उसके नोज पर बहुत जोर से मारा, उतनी जोर से मारा कि जो पैरासोल था वो 2 टुकड़ों में टूट गया। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. और वो उसने अपना सर हिलाया बेयर ने और बार-बार अपना मुंह खोल रहा था जैसे वो उसको कुछ कहना चाह रहा हो। Then he turned around and began to shuffle, और फिर वो वापस से मुड़ा और shuffle back, वापस उल्टा चला गया। The way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of her. और बार-बार फिर मुड़कर उस लेडी को देख रहा था जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for him. जब लेडी शाम को अपने घर पे लौट के आई तो उसने देखा बेयर अपने कैनल के बाहर में बैठा है और बहुत ही सॉरी फील कर रहा है अपने आप में। The lady was still very angry. अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी वो। She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be changed for 2 more days. उसके पास लेडी गई और बहुत जोर से उसको डांटते हुए बोला बेयर को एज पनिशमेंट 2 दिन तक चेन से बनकर रहना पड़ेगा। The old cook who loved the bear as if he had been her son rushed out of the kitchen very angry. जब उसने उसको जोर से डांटते हुए देखा लेडी को, मिस्ट्रेस को, तो जो कुक थी वो दौड़कर बाहर आई और उससे बोलने लगी। जब उसने गुस्से में चिल्लाते उस लेडी को देखा तो वो दौड़ते हुए किचन से बाहर आई। What are you scolding him for, Mrs? तो बोलती मैडम आप उसको किस बात के लिए डांट रही हैं? Said the cook. He had been as good as gold the whole day.
bless him. इसकी तो आप तारीफ करो, पूरा दिन ऐसे की ऐसे बैठा हुआ जैसा छोड़ के गई थी. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel. ये अपनी haunches पे जब से आप गई हो वैसे की वैसे बैठा हुआ बिना हिले डुले. Looking the whole time towards the gate for me to come back. और जब से आप गई हो तब से दरवाजे पर अपनी आंखें टिकाकर बैठा हुआ है आपका इंतजार करने के लिए. आप इसको क्यों टालते हैं? So it means that bear, वो बेयर जो लेडी को जंगल में मिला था, दैट वॉज नॉट दिस बेयर, वो ये बेयर नहीं था, दैट वॉज अनदर वाइल्ड बेयर जिसको लेडी ने अपना बेयर समझ लिया था. सो शी फेल्ट दैट ही फॉलोड हर एंड ही डिसोबेड हर, सो शी बिकेम एंग्री. तो गुस्सा आ गया, लेकिन वो बेयर उसका बेयर नहीं था, वो कोई जंगल का ही अलग बेयर था. थैंक यू सो मच.